I have to study so many things, but I'm not feeling my 100%. Again, lack of sleep has ruined my day. I'm just not able to focus. Now, do you have trouble falling asleep, staying awake in the evening, waking up in the morning, or focusing on daily tasks and responsibilities? If yes, then it's time for a reset. You might need to reset your body clock. तो क्या है body clock? इट्स योर बॉडीज इंटरनल क्लॉक. अभी कोई घड़ी नहीं है जो आपकी बॉडी में पड़ी है, बात इससे बहुत साइंटिफिक और डीप है. तो कहानी की शुरुआत करते हैं एंशिएंट इजिप्शियंस से, जो कि वाटर क्लॉक्स यूज किया करते थे टू मेजर द पैसेज ऑफ टाइम. सरल शब्दों में, अ वाटर क्लॉक इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट यूजेस द फ्लो ऑफ वाटर टू मेजर टाइम. बोल लाइक स्टोन वेसल्स हुआ करते थे दैट अलाउड वाटर टू ड्रिप एट अ कांस्टेंट रेट फ्रॉम अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. मतलब if it takes 1 hour for the water level in the container to drop by 1 inch, then 3-inch drop means that 3 hours have passed. मैकेनिकल वॉचेस की शुरुआत होती है 14th century यूरोप में. फिर आती हैं पॉकेट क्लॉक्स इन 17th century. आज आपके पास स्मार्टफोन्स हैं जिनसे आप अपना स्केड्यूल फॉलो करते हैं. बट बिफोर ऑल दीज टाइमर्स देयर वर लिविंग सेल्स, themselves impeccable timekeepers. परफेक्ट फ्लॉलेस. टाइम कीपर्स हैं मतलब समयपाल हैं. लिविंग सेल्स समयपाल हैं. मतलब हमने भी मनुष्यों के रेफरेंस में द्वारपाल सुना था, ये समयपाल क्या है? तो अब अगर लिविंग सेल्स लाजवाब टाइम कीपर्स हैं तो वो तो हमारे अंदर भी हैं. ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सच लिविंग सेल्स. तो अब इस घड़ी का कनेक्शन लिविंग बींग्स से है, तो इसको एक नाम दे देते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक. तो biological clocks are an organism's natural timing devices. Nearly every tissue and every organ contains these biological clocks. अब इन biological clocks की एक master clock होती है. Obviously कहाँ होगी? Brain में. Master में. तो अब ये master clock in the brain, it coordinates all the biological clocks and keeps them in sync. सिंक्रोनाइज करके रखती है. तो हम बात कर रहे थे कि नींद में दिक्कत आ रही है, मतलब जिस टाइम पे हम उठना चाहते हैं अपनी इच्छा से वो नहीं हो पा रहा है. तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत उसी दिमाग वाली घड़ी में है जिसे हम मास्टर क्लॉक कह रहे हैं. अब इस मास्टर क्लॉक को एक सोफिस्टिकेटेड सा नाम दे देते हैं सिकेडियन क्लॉक. तो अब हर घड़ी की एक लय होती है, रिदम होती है. तो सिकेडियन रिदम नाम दे दिया गया है आपकी बॉडी की 24 आवर इंटरनल क्लॉक को. तो ये है क्या बेसिकली? दीज आर फिजिकल, mental and behavioral changes in your body that follow a 24-hour cycle. Circadian rhythms regulate hunger, digestion, body temperature, fluid balance, mood and other important physiological processes. तो अब अगर आपकी circadian rhythm इतनी important है, let us now talk about the factors affecting your circadian rhythm. Now factors like light, temperature and when you eat, these affect your circadian rhythm. तो इन सब external cues को, बाहरी संकेत जो कि affect करते हैं आपकी internal clock को, हम क्या कहते हैं? हम Zeitgeber कहते हैं. इनको एक टर्म दे दिया है, ये एक जर्मन वर्ड है. Zeitgeber means time giver और synchronizer. Other Zeitgebers include physical activity, body temperature, food intake and social interaction. So your body uses light and other Zeitgebers in order to determine whether it is day or night and to synchronize your circadian rhythms accordingly. Now out of all these Zeitgebers that I have discussed, light happens to be the most important Zeitgeber for circadian rhythms. Now in all vertebrates including humans, this master clock, it consists of 20,000 nerve cells, neurons that form a structure called suprachiasmatic nucleus, जिसको हम abbreviation में SCN कहते हैं. तो ये SCN कहाँ है? That is located inside your brain in a part called hypothalamus and it receives direct input from the eyes. So during day when your eyes perceive light, they activate signals that travel down a nerve tract to the suprachiasmatic nucleus और ये आपके दिमाग को बताता है कि जागने का समय है. ठीक है, तो जो ये SCN है, suprachiasmatic nucleus, it releases a series of hormones.
इंक्लूडिंग कॉर्टिसोल। ये आपको जब रिलीज़ होता है तो ये बताता है कि आप अलर्ट हो जाएं, अवेक हो जाएं, कि जागने का वक्त है। तो आपको अच्छा अच्छा फील करवाता है कि हाँ जी आप सो के उठे हैं। And it is important to note that even when your eyes are closed, your eyes can still perceive light and activate signals to the SCN. तो मतलब ये जो circadian rhythms हैं, they regulate the production of various hormones throughout the 24-hour cycle. तो मतलब when the sun rises in the morning, सुबह के टाइम बॉडी रिलीज करती है हार्मोन, कौन सा? कॉर्टिसोल, that makes you feel alert and awake, refreshed. ठीक है, तो जैसे ही एक हेल्दी पर्सन उठता है तो वो तरोताज़ा फील करता है जब तक सूरज ढल नहीं जाता। तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी रिड्यूस होती जाती है एंड एट द टाइम जब सन की रोशनी ख़त्म होती जाती है सनसेट के बाद, तो बॉडी धीरे धीरे सुस्त पड़ती जाती है। तो जो पीनियल ग्लैंड है वहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है? वहाँ से एक हार्मोन रिलीज़ होगा, कौन सा? मेलाटोनिन। जो मेलाटोनिन है ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है टू रिड्यूस अलर्टनेस एंड मेक्स यू फील टायर्ड। तो मैंने बताया है जो पीनियल ग्लैंड है ये रिलीज़ करता है मेलाटोनिन हार्मोन को, लेकिन जो सुप्राकियास्मैटिक न्यूक्लियस है SCN, जो कि आपकी मास्टर क्लॉक का स्ट्रक्चर जो मैं बता रही हूँ हाइपोथैलेमस में था, ये कंट्रोल करता है द प्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन। और ये वही हार्मोन है जो आपको स्लीपी सा फील करवाता है कि बस सुस्त हो जाओ, सोने का वक्त आ गया है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो सुप्राकियास्मैटिक न्यूक्लियस है इट रिसीव्स डायरेक्ट इनपुट फ्रॉम द आइज़। तो आँखों से जो रिलेटेड नर्व्स होती हैं वो क्या होती हैं? ऑप्टिक नर्व्स। तो जो सिग्नल है, जैसे कोई रोशनी आप बाहर देखते हैं तो ये जो इन्फॉर्मेशन है कि बाहर रोशनी है, ये आँखों से आपकी ऑप्टिक नर्व्स से ट्रैवल करते हुए इन्फॉर्मेशन सुप्राकियास्मैटिक न्यूक्लियस की तरफ जाती है। और ये फिर जो इन्फॉर्मेशन है कि हाँ भी मैंने रोशनी देखी, ये इन्फॉर्मेशन आँखों से ब्रेन को देता है SCN आपका। तो होता क्या है कि अगर तो आपको रोशनी कम मिल रही है, ठीक है, बाहर से, तो इन्फॉर्मेशन क्या जाएगी कि कम रोशनी है, तो ये SCN दिमाग को जाके कहेगा कि भाई मेलाटोनिन थोड़ा ज़्यादा रिलीज़ करवाओ क्योंकि ये बंदे के सोने का टाइम है। अब आपने देखा कि जो सर्केडियन रिदम्स हैं दे आर इवन रेगुलेटिंग द रिलीज ऑफ वेरियस हार्मोन्स इन द बॉडी। अब जो चीज़ ये सब कुछ कर रही है वो ऑब्वियसली आपकी हेल्थ को अफेक्ट करने लगी है। तो लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ सर्केडियन रिदम्स ऑन योर हेल्थ। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे पहले कि आपके हार्मोन रिलीज़ को इफ़ेक्ट करेगी। दूसरा क्या है कि आपके फूड इंटेक को ये अफेक्ट कर सकती है, डाइजेशन को अफेक्ट कर सकती है एंड बॉडी टेम्परेचर को। लेकिन इन सब में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट इसका देखा गया है वो क्या है? आपके स्लीपिंग पैटर्न पे। स्लीप डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो स्लीप डिसऑर्डर्स आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स में डाल सकते हैं। स्लीप डिसऑर्डर्स अगर आपको ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली आपको डिप्रेशन की तरफ आप चले जाएंगे, क्योंकि सुबह जब आप उठेंगे आपका मूड सही नहीं होगा, ओवर द टाइम आप चिड़चिड़े हो जाएंगे क्योंकि आपकी नींद नहीं पूरी होती। ठीक है, डिप्रेशन ऑब्वियसली फिर आपको डिप्रेशन में ज़्यादा खाने की मन करता है तो ओबेसिटी हो सकती है और डायबिटीज़ हो सकती है, बाइपोलर डिसऑर्डर एंड सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स। ये सब चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ नींद की वजह से हो सकती है, नींद ना आने की वजह से। तो व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट कैन चेंज योर सर्केडियन रिदम्स? तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। ये आपकी बॉडी भी जिम्मेदार हो सकती है कि उसमें इंटरनल चेंजेस आ रहे हैं, या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बाहर की तरफ से जो जाइड कीवर्ड्स हैं उनकी वजह से भी आपकी ये जो सर्केडियन रिदम्स हैं ये डिस्टर्ब हो सकती है। तो होता क्या है कि ये जो नेचुरल लाइट डार्क साइकिल है, दिन देखना और रोशनी ना देखना, तो ये आउट ऑफ सिंक चला जाएगा। तो वो कब कब हो सकता है? सबसे पहले है म्यूटेशंस और चेंजेस इन सर्टेन जीन्स इन आवर बॉडी, दिस कैन अफेक्ट योर बायोलॉजिकल क्लॉक्स। और वो जीन्स के क्या नाम है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। दूसरा क्या हो सकता है कि आपका इस तरह का काम है कि आपको दिन के अलावा नाइट शिफ्ट्स में भी काम करना पड़ रहा है, तो वो भी आपका ये जो डार्क और लाइट वाला साइकिल है ये डिस्टर्ब करेगा। उसके बाद आपका और क्या हो सकता है कि लाइट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कि अगर रात को आपको स्क्रॉल करने की आदत है, सोशल मीडिया में टटोल लूँ भी दुनिया कहाँ पहुँच गई, मेरे को कितना बर्बाद होना है और इतनी नेगेटिविटी से, तो अगर आपको ये करने की आदत है रात के टाइम तो वो भी आपको वैसे भी बर्बाद कर रही है, ऐसे भी कर देगी। तो फोर्थ और हो सकता है जेट लैग, उसकी वजह से कि मतलब अगर आप
जहाज़ में ट्रैवल करते हैं, बड़े रईस हैं, तो यहाँ से आप गए दिन के 1 बजे और जहाँ 4 घंटे बाद पहुँचे वहाँ बजे हुए थे रात के 4। फिर नहीं पता चलता सोना या उठना है। सो वाई एट ऑल देयर इज़ अ नीड टू रीसेट योर सर्केडियन रिदम। तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि जैसे आपको नई नई जॉब लगी है तो आपको रात को लेट तक काम करना पड़ता है और सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो तौर तरीके आपके पहले बड़े अलग रहा करते थे, तो उस कारण आपको हो सकता है कि आपको अपना स्केड्यूल चेंज करना पड़ सके। तो उसे आपको सर्केडियन रिदम रीसेट करना कहते हैं कि मैं अपने जो टाइम को है थोड़ा सा पीछे ले जाऊं सोने वाले को, ताकि मैं जल्दी उठ सकूं। एक आपको तब ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरा आप क्या कह सकते हो कि अगर आप अर्ली राइज़र हो, फॉर एग्जांपल सुबह जल्दी जल्दी उठते हो, तो हो सकता है आपकी नींद ना पूरी होती हो, तो आपको हो कि नहीं मुझे सेट करना है कि मैं थोड़ा सा लेट उठ पाऊँ सुबह। या आप रात के उल्लू हैं, नाइट आउल हैं, तो आपको होता है कि मैं लेट तो सो जाता हूँ, फिर मेरी नींद नहीं पूरी हो पाती, सुबह मेरे को किसी कारणवश जल्दी उठना पड़ता है। तो नींद ना पूरी होना एक अर्ली राइज़र की या नाइट आउल की एक और रीज़न हो सकता है कि आपको रीसेट करने की ज़रूरत है अपने सर्केडियन रिदम को। तीसरा तो वो शान शौकत वाला है कि भाई आप इतने रईस हैं कि फिर आपने मल्टीपल टाइम जोन्स ट्रैवल करने हैं, तो फिर आपको फिर पता नहीं चलता अभी दिन है या रात है, सोना मतलब उस हिसाब से फिर आपको अपना जो साइकिल है रीसेट करना पड़ेगा, ताकि ठीक टाइम पे आप एक बार जब दूसरे कंट्री जा रहे हैं तो वहाँ उस हिसाब से लोकल टाइम के हिसाब से सो जाएँ या उठ जाएँ। तो एक रीज़न ये हो सकता है। इस पे इतना ज़ोर इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि बेसिकली नींद बहुत बड़ी चीज़ है, नींद की ज़रूरत है सबको। अच्छी नींद की मतलब कुछ घंटे आप अच्छे से सो रहे हैं, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर नहीं आ रही है तो भाई गॉड गिफ्ट है, नहीं आ रही तो मेहनत करनी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा उसके ऊपर, ठीक है। अगर कम सो रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ होती है और फिर आपको मूड स्विंग्स होते हैं कि सामने वाले बंदे को मैं काट खाऊं, इस तरह से आप फिर चिड़चिड़े रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं। तो बेसिकली ये टॉपिक डिस्कस करना इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज बीइंग अ स्टूडेंट या बीइंग एन अडल्ट यू माइट बी फेसिंग दीज चैलेंजेस इन लाइफ, ठीक है। तो अगर आपका पूरे दिन खराब हो रहे हैं तो ये चीज़ पे काम कीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं 2 ऐसी अप्रोच जो कि जनरली लोग फॉलो करते हैं, जो कि बहुत ही पुअर अप्रोच है, बेकार अप्रोच है। कि मतलब जो उनसी चीज़ पे कष्ट ना करना पड़े, इंसान सबसे पहले वहाँ दौड़ता है कि भाई जो मेहनत के बिना चीज़ अपने आप मिल जाए, चाहे गलत तरीके से आ रही हो, दिमाग कहता है ये शॉर्टकट अपनाओ, जबकि शॉर्टकट्स हमेशा आपको। सबसे पहली गंदी स्ट्रैटेजी है कंज्यूमिंग अल्कोहल। तो सम पीपल प्रेफर ड्रिंकिंग अल्कोहल लेट इन द इवनिंग्स और बिफोर देयर स्लीप टाइम टू इंड्यूस स्लीपीनेस, कि भाई हमें नींद वैसे तो आनी नहीं है तो हम अल्कोहल ड्रिंक कर लेते हैं। तो उससे क्या होगा कि अल्कोहल इज़ अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट एंड इंड्यूसेस फीलिंग्स ऑफ स्लीपीनेस, कि हाँ भाई नींद आ जाए। तो लोगों के पास एक मेहनत तो करनी नहीं, तो ये जो इजी तरीका है कि भाई सुस्त हो जाओ तो एक लगा लो। तो so many people drink in order to feel more relaxed and tired before they go to sleep, but it is to be noted that drinking alcohol, it lowers sleep quality, sleep duration, making sleep non-restorative and insufficiently refreshing. Now another less effective strategy is sleep medications. Now sleep medications are also questionable as long-term strategies. तो हो सकता है डॉक्टर्स आपको कुछ स्लीप मेडिकेशंस रिकमेंड कर दें कि आपका ये जो स्लीप वेक साइकिल है ये ठीक हो जाए, लेकिन दीज आर ऑल टेम्परेरी फिक्स। तो आपको पूरा आपका जो सर्केडियन क्लॉक है ये रीसेट करने में हेल्प नहीं होगी, सिर्फ टेम्परेरीली आपको लगेगा रिलीफ आ गया है, लेकिन इसके और भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं कि जैसे अगर आप सुबह उठते हैं तो आपको ड्राउजी फील होता है, सुस्त पूरे दिन रहते हैं आप, या इसका लॉन्ग टर्म आपको आदत पड़ सकती है कि इसके बिना आपको नींद ही ना आए। तो आपको मेलेटोनिन याद है, जो नेचुरल हार्मोन था, जो पीनियल ग्लैंड आपका प्रोड्यूस करवा रहा था, जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि आपको सुस्त सा फील करवाए। तो यही चीज़ चाहिए आपको सोने के लिए। तो ये जो हार्मोन है मेलेटोनिन, ये सप्लीमेंट फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। तो सप्लीमेंट फॉर्म में ही जब अवेलेबल हो गया तो ये मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो दवाइयाँ देते हैं तो उसमें होता है, तो डॉक्टर्स आपको 1 से 3 मिलीग्राम्स ऑफ मेलेटोनिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं टेम्परेरीली आपको
आपके ये जो स्लीप वेक साइकिल को ठीक करने के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म यूज़ अगर आप करते हैं इन सब चीज़ों का तो ये इंटरैक्ट कर सकते हैं अदर मेडिकेशंस के साथ भी, जो कि आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो आपको ये तभी लेनी चाहिए जब आपका डॉक्टर आपको ये प्रिस्क्राइब करे। तो उनसे बिना पूछे आपको मेडिकेशंस खुद से नहीं लेनी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन इज़ डिस्ट्रक्टिव। Now, in order to effectively alter your circadian rhythm, we recommend you the following techniques. First one is have a routine. If you have been going to bed at all different hours of the night, try setting up a schedule and sticking with it. Once you have established a routine, you will be able to fall asleep and wake up easier. It's also important to stick close to that schedule on weekends or days off. Next is exercise. Exercise really helps with melatonin production. It also helps your body's other systems sync with the circadian rhythm. एक्सरसाइज कब करनी चाहिए और उससे आप कैसा फील करते हैं ये वेरी करेगा डिफरेंट लोगों के लिए। कुछ लोग जो सुबह एनर्जेटिक फील करते हैं तो वो एक्सरसाइज सुबह के लिए रखते हैं, अदर्स सेव इट फॉर लेटर इवनिंग। थर्ड इज अवॉइड अल्कोहल एंड कैफीन इन द इवनिंग। तो अल्कोहल जैसे हमने डिस्कस किया कि आपको शुरुआत में तो हो सकता है स्लीपी या टायर्ड फील करवा के सुला दे, लेकिन इन द लॉन्ग रन इट कैन अफेक्ट योर सर्केडियन रिदम्स। एंड कैफीन ऑन द अदर हैंड इज़ अ स्टिमुलेंट। ये अगर आप शाम को ले रहे हैं तो ये काफ़ी घंटे तक आपको दिमाग को स्टिमुलेट करके रखता है कि नहीं जगे रहो, तो इसीलिए आपको ये दोनों चीज़ें शाम को लेने को अवॉइड किया जाता है। फोर्थ इज़ लिमिट योर स्क्रीन टाइम। अब आपको अगर रात को सोने से पहले अपना फ़ोन चलाने की आदत है कुछ भी चेक करने के लिए, तो हो क्या रहा है कि जो ब्लू लाइट है फ़ोन से ये एक ज़ाइट गीबर एक्ट करेगी, ठीक है। लाइट आपकी आइज़ को जाएगी और वहाँ से आपको क्या होगा, जो मेलेटोनिन प्रोडक्शन है वो रिस्ट्रिक्ट करेगा। आपका सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस आपके जो सिग्नल हैं ब्रेन को देगा कि बाहर से लाइट ऑलरेडी आ रही है, तो ये इसके जागने का टाइम है। तो जो सुस्ती वाला हार्मोन रिलीज़ करना वो बंद कर दो, थोड़ा कम कर दो, तो उससे क्या होगा, आपको नींद नहीं पड़ेगी, तो नींद आने में दिक्कत करेगा। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि 30 मिनट पहले एटलीस्ट अपने सारे मोबाइल फ़ोन साइड रख दें, सोने से पहले शांत होकर सोएं। फिफ्थ इज़ अवॉइड नैप्स। अब अगर आपको दोपहर में भी सोने की आदत है तो उससे क्या होगा, आप फिर से रात को जल्दी नहीं सो पाएंगे। उस टाइम फिर आपको नींद नहीं आएगी क्योंकि आपने ऑलरेडी बॉडी को रेस्ट दे दिया है। तो अगर आपको सोने की आदत है तो दोपहर को आप हो सकता है 3 बजे से पहले अगर हो सके तब सोएं, और सोने का भी टाइम आपका 30 मिनट से ज़्यादा का ना हो। तो ये जो झपकी लेनी है ये 30 मिनट से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, ताकि आपका जो स्लीप वेक साइकिल है वो हेल्दी रहे। सिक्स्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज़ ग्रेजुअली मूव योर बेड टाइम। कि अगर आपको सपोज़ 11 बजे सोने की आदत है तो आप उसको 10:30 कर दो, ठीक है। तो आधे घंटे की पीछे पीछे जाते जाओ, थोड़ा टाइम उसको 10:30 रखा, फिर उसके बाद 10:30 को 10 पे लेके आए, तो एकदम से 11 का 8 या 7 नहीं होने वाला, ठीक है। सो नाउ यू नो दैट एवरी वन ऑफ अस इज़ डिफरेंट एंड यूनिक। सो ये जो इंटरनल क्लॉक है सबकी ये वेरी करती है। आप अर्ली राइज़र हो सकते हैं या नाइट आउल हो सकते हैं या इन दोनों के बीच में हो सकते हैं। तो जो अगर अर्ली राइज़र है ये हमेशा मोर एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव रहेगा सुबह के टाइम, और दूसरे वाला लेटर इवनिंग्स में अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव महसूस करेगा, और बीच वाले तो फिर बीच वाले ही हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो सकता है कि ये जो सर्केडियन रिदम्स हैं ये इवॉल्व करती हैं टाइम के साथ। कि हो सकता है कि जब आप टीनेजर हों आप नाइट आउल रहे हों, लेकिन लेटर ऑन जब आप 50-60s में जाते हैं तो हो सकता है कि आप सुबह जल्दी उठना प्रेफर करें। तो ये टाइम के साथ सर्केडियन रिदम्स आपकी इवॉल्व करती हैं। तो अगर आप पूरा दिन टायर्ड फील करते हैं और नींद की वजह से आपको प्रॉब्लम है तो हो सकता है आपकी इंटरनल क्लॉक ऑफ हो। तो ये जो आपको पॉइंट्स बताए हैं ये फॉलो करके आप दोबारा से इसको रीसेट कर सकते हैं। जो हेल्दी लोग होते हैं उनकी जो सर्केडियन रिदम्स हैं वो अपने आप 24 घंटे के बाद रीसेट हो जाती हैं, तो उनका जो सोने का उठने का टाइम है वो बिल्कुल फिक्स्ड सा रहता है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन बाकियों को अगर दिक्कत आ रही है तो आपको थोड़ा सा इस पे काम करने की ज़रूरत है। Next thing to discuss is, does your body make and keep its own circadian rhythm? Well, the answer is yes. For humans, the most important genes in this process are period and cryptochrome genes. Most genes contain information needed to make functional molecules called proteins. These instructions contained in the gene, they tell a cell how to make a specific protein.
तो ये जो प्रोटीन्स हैं ये बिल्डअप हो जाते हैं सेल के न्यूक्लियस में ड्यूरिंग नाइट, और ड्यूरिंग डे ये लेसन होते रहते हैं, कम होते रहता है ये प्रोटीन। तो these proteins help activate feelings of alertness, wakefulness and sleepiness. However, it is to be noted that external environmental factors can also affect circadian rhythms. For instance, अगर आप रात के टाइम खुद को लाइट का एक्सपोजर करवा रहे हैं तो this resets when your body turns on period and cryptochrome genes. तो फाइनली लेट अस नाउ डिस्कस कि हाउ डू रिसर्चर्स स्टडी circadian rhythms. तो स्टडी ऑफ circadian rhythms इज नोन एज chronobiology. तो साइंटिस्ट स्टडी करते हैं circadian rhythms को ह्यूमन बींग्स के लिए कैसे? बाय स्टडिंग ऑर्गेनिजम्स हैविंग सिमिलर बायोलॉजिकल क्लॉक जीन्स सच एज फ्रूट फ्लाइज एंड माइस. तो इन ऑर्गेनिजम्स की एनवायरनमेंट को कंट्रोल किया जाता है कि कब इनको लाइट या डार्क का एक्सपोजर देना है, एंड द लुक फॉर द चेंजेस इन जीन एक्टिविटी एंड अदर मॉलिक्यूलर सिग्नल्स. तो scientists also study organisms with irregular circadian rhythms in order to find out which genetic component of the biological clock may be broken. तो ऐसी रिसर्च इम्पॉर्टेंट इसीलिए हो जाती है बिकॉज दे कैन हेल्प यू डील विद जेट लैग्स, ओबेसिटी, डिप्रेशन, मेंटल डिसऑर्डर्स, स्लीप डिसऑर्डर्स एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स. तो ये उन लोगों को भी हेल्प करती है जिनका काम हमेशा वर्किंग आवर्स शिफ्ट करते रहते हैं, कभी दिन में कभी रात में. एंड ऑब्वियसली इफ़ यू लर्न मोर अबाउट, इफ़ यू गेट टू नो मोर अबाउट जीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर circadian rhythms, तो यू कैन ऑब्वियसली अंडरस्टैंड मोर अबाउट ह्यूमन बॉडी और मोर एंड मोर ह्यूमन बींग्स को जो कि इस प्रॉब्लम से सफ़र कर सकते हैं. ऐसी रिसर्च उनको हेल्प कर सकती है टू लीड अ बेटर लाइफ. तो resetting your circadian clock actually deals with the time you sleep and the time when you get up. तो it has nothing to do with the quality of sleep. तो हो सकता है आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप इतनी अच्छी ना हो, लेकिन वो किस पे डिपेंड करती है? आपके लाइफस्टाइल पे, जिसमें थोड़ा सा चेंज करने पर आप अपनी स्लीप क्वालिटी भी इन्हांस कर सकते हैं सो दैट यू गेट अ हेल्दियर स्लीप. So the view now is that a healthy sleep is as important as exercise and diet to overall health. So with this note, I'm winding up with today's video, sending you all the good health and happiness. This is Pooja saying goodbye and take really good care of yourselves. Bye bye.